हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ देयर स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि राज्य के नैतिक निर्देश सिद्धांतों के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ में हम जो करेंगे मौलिक कर्तव्य के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए में पढ़ रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में हो, चाहे वो +2 एनआईएस बोर्ड से कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। ये टॉपिक अगर उनके सिलेबस में है तो उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हम सभी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important topic here, the mean and directive principle of state policy. There is a most important, the directive of principle. The directive principle of state policy are in form of instructions and guidelines to their government at the center as well as the state. These principles are known as justifiables. They are fundamental in a governance of the countries. The idea of directive principles of the state policy has been taken from to the Irish republics. They were incorporated in our constitution in order to provide economical justice and to avoid to the concentration of the wealth in hand of the few people. Therefore, no government can afford to ignore them. They are in fact the directive to be a future government to be incorporate them in the decision and policy to the is formulated by them. The next point here is the classification of the directive principle. What do you mean there is the classification of the directive principle? The directive principle of state policy has been to the grouped into the 4 category. These are the economical and social principle, the Gandhian principle and principle of the policy relating to the international peace of security and is the miscellaneous. Their first here the economical and social principle. There is the state shall be in the behavior of achieve social and economical welfare of the people by providing a quarters mean of livelihood for both man and woman, and the recognizing the economical system in way to the avoid a concentration of wealth in a few hand, and the securing the equal to the plate of equal work for both man and woman, and securing to the suitable employment and the healthy working condition for a man, woman and children, and guarding their children is against the explorations and the moral degradations, and making effective a provision for the securing their right to a work, education and public assistance in a case of unemployment, old age and sickness and disablement, and making a provision for the securing just a harmons and condition of work and from a maternity or leave, and taking step of secure for the participation of worker in their management of undertaking, etc. And next is the promoting to education and economic interest of working section of the people, especially the SC and ST. And next year, the securing for all the workers reasonable leisure and the culture opportunities. And the next year, making effort to the rise the standard of living and public health.
and providing to earlier the childhood and care and education to all children until they are complete the age of 60 years. There is the most important here. And next year, the Gandhian principle. There contain a principle based on the ideal is advocated by the Mahatma Gandhi. These principles are flowing. There is a four is organize the village panchayat. To organize the village panchayat is the first point. To promote the cottage industry in the rural area. To prohibit intoxicating of drink and drugs that are injuries to health, and to preserve the improve their breeds of the cattle and is a prohibit and the slaughter of the cow and the calves of the other mulch and the draft animals. And the next is the directive principle of state policy related to the international peace and security. India should be render active as a cooperation for the world peace of security, and for that is a state shall be endeavors to. The first is to promote to international peace and security and maintaining just and honorable relation between the nations. And poster is a respect for the international law and treaties is a obligations. And the next is a encourage a settlement of international debt by mature agreement. The next year is the miscellaneous. The directive principle categories called upon to the state to secure for all the Indian Uniform Civil Code and to protect the historical is a momentous and to shape the environment from pollution and protect wildlife, to make a arrangement to the dispensement of free legal justice through the suitable regulations. दोस्तों ये जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे वो बीए हो, चाहे 11वीं हो, +2 हो, चाहे कोई भी बोर्ड के हो। कहते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का एग्ज़ाम में आना हमेशा बना ही रहता है, चाहे वो बड़े क्लास में हो चाहे छोटे क्लास में हो, हर क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। कहते हैं राज्य नीति निर्देश सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, आखिर क्या मतलब होता है इसका। कहते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश होता है। यद्यपि ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, ये देश के प्रशासन में मूल्य भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निर्देश सिद्धांत का विचार आया कहाँ से, तो ये आयरलैंड के संविधान से आया है, ये आपको याद रखना है। कहते हैं यूपीएससी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं नहीं, सिलेबस अगर ढंग से आप समझ लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम बच्चे तैयार करते हो या एसएससी के एग्ज़ाम करते हो या कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो, कहते हैं अगर बच्चों को टॉपिक समझ है तो वो सभी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। कहते हैं आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचलन रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। दरअसल ये निर्देश भावी सरकार को इस बात को ध्यान में रखकर दिए गए थे कि विभिन्न निर्णय नीति निर्धारण में इसके समावेश हो, यानी अगर बने नीति निर्धारण बने तो इसका जो है इसमें समावेश होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। नीति निर्देश सिद्धांत के जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नीति निर्देश सिद्धांत के वर्गीकरण। देखिए कहते हैं अगर हम इसको वर्गीकरण के रूप में देखें तो ये जो होंगे आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के रूप में होगा, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत होगा, और जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित सिद्धांत के रूप होगा, और इसमें जो होगा चौथा पॉइंट इसमें विविध सिद्धांतों के रूप में हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा तो यही आता है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के रूप में इसका क्या योग्यता है। कहते हैं लोगों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य जो है निम्नलिखित प्रयास सदैव करते हैं। पहला तो यही बात आ जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना इसके अंतर्गत आता है। कुछ हाथों में संपत्ति का जो है संकेंद्रीकरण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का जो है पुनर्गठन भी किया जाता है। सामान्य कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को सामान्य जो है पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी हमारा ये संविधान बताता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सामान्य काम के लिए सामान्य जो है पारिश्रमिक मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गलत है। स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का जो है स्वच्छ वातावरण तैयार करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को शोषण को और नैतिक अधोगति को बचाना, यानी बच्चों को शोषण नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश में बच्चों के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उसके पश्चात है रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी एवं असमर्था की स्थिति में सरकारी सहायता के जो है कारगर उपाय करना, यानी कारगर उपाय करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। कार्य का जो है न्याय उचित एवं मानवीय वातावरण तैयार करना एवं प्रसूति सेवा का व्यवस्था भी किया गया है। यानी प्रसूति होती है तो जो औरतों को है काफ़ी महीनों के लिए छुट्टी मिल जाती है, जो कि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखा जाए तो कामगारों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शिक्षा प्रबंधन एवं उनके आर्थिक हितों का बढ़ावा देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात आता है सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश एवं संस्कृति मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना। ये भी इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना भी यही इंपॉर्टेंट बात रहता है। 6 साल तक के सभी बच्चों को जो है बाल्यकाल की सुविधा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। तो ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब देखते हैं हमारा अगला जो इसके पॉइंट है क्या है। अगला पॉइंट जो है गांधीवादी सिद्धांत। देखिए गांधीवादी सिद्धांत जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा कि गांधी जी ने अपना विचारधारा जो है नैतिक निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। तो कहते हैं कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदेशों के आधार पर बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी थी। कहते हैं गाँव में पंचायतों का गठन करना गांधी जी का सबसे पहला जो माना गया था। उन्होंने ऐसे ही सपना देखा था। गाँव में कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना उनकी सबसे इम्पोर्टेंट एम्बिशन में से था। नशीले पदार्थ और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बहुत ही ज़रूरी इन्होंने बात बताई थी। लेकिन कहते हैं आज महात्मा गांधी के कदमों पे कोई भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इवन आपने देखा भी होगा कि कोरोना वायरस में भी कहते हैं कोई चीज़ नहीं खोला गया, कोई दुकान नहीं खोला गया, लेकिन सरकार ने सबसे पहले क्या खोली, तो कहते हैं शराब की दुकान ही खोली। अब देखिए पहले तो हम ये कहते हैं कि गांधी जी के हम आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, गांधी जी के आदर्शों को हम धरा का धरा ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के नेताओं की कि हम गांधीवादी बात करते हैं, लेकिन गांधी के तो कोई भी शब्दों का हम उच्चारण ही नहीं करते। कहते हैं स्वच्छ भारत तो हम अभियान चला दिए, लेकिन आए दिन देखोगे तो रोडों पे जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या ये स्वस्थ जो है स्वच्छता का ये निशानी होता है किसी देश का? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो कहते हैं गांधी जी यही विचारधारा से थे कि नशीले पदार्थ, शराब आदि जो है प्रतिबंध लगाना, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है और देश के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना एवं उनके वध पर प्रतिबंध लगाना। देखिए ये बात भी गांधी जी को आज लोगों ने खंडन कर दिया है। कहते हैं गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं को नस्लों को सुधारना, उनको वध पर प्रतिबंध लगाना। आज तो देखोगे गाय जो होते हैं और भैंस होते हैं ऐसे ही रोडों पर आपको मिल जाते हैं, दौड़ते हुए, चलते हुए, और आए दिन इनको एक्सीडेंट हो जाते हैं, आए दिन ये कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई इस पर ध्यान आजकल नहीं दिया जाता है। कहते हैं जो हमारे गांधी जी ने देखा था सपना, उसके विपरीत जो है हमारा देश बनता चला जा रहा है। तो कहते हैं कई मानने में उनका जो है मन बहुत काफ़ी हताश भी होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष नीति निर्देश सिद्धांत। कहते हैं विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय भी करेगा। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्र के बीच जो है न्याय उचित एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित भी करना ये दायित्व रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि से उत्पन्न दायित्व का सम्मान करना ये भी विविध नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का जो है पारंपरिक समझौते के द्वारा हल ढूंढना ये भी जो है इसके अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात आता है विविध नीति निर्देश सिद्धांत। देखिए सभी भारतीयों के लिए सामान्य आहार संहिता बनाए जाए, यानी सिविल बनाया जाए, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण भी किया जाए, पर्यावरण को प्रदूषित रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण किया जाना चाहिए। कहते हैं हमारे कानून में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, मैं भी इस बात को जो है मानता हूँ और समझता हूँ, लेकिन आज के समय में इसके विपरीत होते हैं। हम पर्यावरण को दूषित करते चले जा रहे हैं और वन जीवन के लिए संरक्षण की तो दूर की बात है, हम तो आए दिन जो है शिकार करते हैं, न्यायालय में केस जाती है और केस जो है 50 साल तक चलती ही रहती है। तो यही तो हमारे देश की विडंबना है। उपयुक्त विधायन के द्वारा जो है निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था भी की जाए। तो कहते हैं ये जो हमारा था पहला जो नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत पहला टॉपिक था, इसका दूसरा टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है,
तो इसको देखना मत भूलिएगा। और देखने के लिए आपको तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहने की आवश्यकता है, और बने रहे तब रहोगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चैनल सब्सक्राइब करके ही जो है मेरे वीडियो को आप आसानी से प्राप्त कर पाओगे। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो शायद मेरा वीडियो जो है आसानी से प्राप्त न हो पाए। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, जितना हो सके वीडियो को दूसरे बच्चों को पहुंचाने का संकल्प भी लेना है, और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव भी करना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।